Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the kinetic interpretation of temperature. We have studied the kinetic molecular theory of gases. It says that the gas molecules move randomly. In this random motion, they collide among themselves and they collide with the wall of containers, right? And also the pressure exerted by the gas is because of the collisions with the wall of container. See this equation, which is kinetic gas equation. We have already studied it. PV is equal to 1 by 3 mnc bar square. And there is one more equation, which is kinetic energy equation. We have derived it from the formula half mv square, and we have replaced the v by mean square velocity, half mc bar square. Now we are going to multiply our equation, general gas equation, by 2 by 2, and we are going to rearrange it like we have done in Charles law. PV is equal to 2 by 3 n into half mc bar square. This half mc bar square is equal to kinetic energy ek, so we are going to replace it with ek. The equation becomes PV is equal to 2 by 3 n into ek, kinetic energy. And you know the n is basically the number of molecules. So if the gas is 1 mole, it means in 1 mole gas there are Avogadro's number of particles. We can replace n with Na. So the equation becomes PV is equal to 2 by 3 Na into Ek. And you already know that general gas equation for 1 mole is equal to PV is equal to RT. Actually, it is PV is equal to nRT, but for 1 mole of gas, it becomes PV is equal to RT, right? So we can replace this PV by RT, right? So the equation becomes 2 by 3 Na into Ek is equal to RT. From here, we can derive the formula of kinetic energy, which becomes 3R over 2Na into T. हमने करना क्या, सिंपली ई के को आपने इस साइड पे रख लिया, बाकी सारी जितनी वैल्यूज़ हैं आप राइट साइड पे ले आए, तो आपके पास फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का. Now look at this formula. You can see that the kinetic energy is directly proportional to the temperature. Higher is the temperature, more will be the kinetic energy. Why? Because when the temperature increases, the motion of the molecules increases. उनकी energy ज़्यादा हो जाती है. Heat क्या है? Basically heat is a form of energy. So when you're increasing the temperature, you are giving more heat to the gas molecules. The more heat you give to them, the more energy you are giving to the molecules. जितनी ज़्यादा molecules की energy होगी, वो उतनी ज़्यादा motion show करेंगे, और वो जितनी ज़्यादा motion show करेंगे, उनकी kinetic energy उतनी ज़्यादा होगी. So basically, what type of energy the temperature gives to the gas molecules is the translational kinetic energy. Translational energy होती है जो कि वो kinetic energy होती है जो को इसको straight line में move करने में help out करती है, ठीक है. तो जितने ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स आपस में उतनी ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, उनकी मूवमेंट या उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी. लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी दे विल नॉट ट्राई टू कोलाइड विद वन अनदर. क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं करेंगे, वो कम मूवमेंट शो करेंगे, ठीक है. अब ये तो होगी गैसेस में. अब लिक्विड्स और सॉलिड्स में क्या होता है, जब सॉलिड्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, सो दे डो नॉट शो एनी चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. लेकिन वो कौन सी शो करते हैं? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक ही जगह रह के वाइब्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप उनको हीट देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. But in case of gases and liquids, क्योंकि मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जब हम गैसेस और लिक्विड्स को हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो क्या होता है, बेसिकली उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है. जो जितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एवरेज, उतना ही टेम्परेचर होगा. सो बेसिकली दोनों एक जितना इक्वल होंगे. अगर आपको देखना है कि गैस का टेम्परेचर क्या है, तो आप क्या चेक कर सकते हैं? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर, मतलब उस गैस का उतना ज़्यादा है. ऑलराइट, एक और बात हमने पहले पढ़ा था, एब्सोल्यूट ज़ीरो. एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ बेसिकली द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, ठीक है, जो हम अचीव कर सकते थे, मतलब जो हमने हाइपोथेटिकली अचीव करने की कोशिश की थी थ्रू ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अगर आपको याद हो चार्ल्स लॉ में.
दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बहुत कम है, वो इतना कम है कि उस पर वॉल्यूम क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था और एक तरह से मोशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो दैट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर इज़ नॉट अटेनेबल, उसको हम अटेन नहीं कर सकते, वो थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचें, ऐसा पॉसिबल है कि गैस का वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो तभी अचीव हो सकता है जब वॉल्यूम क्या हो, ज़ीरो हो। लेकिन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं होता, मॉलिक्यूल की मोशंस बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, इसलिए जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर अभी तक अचीव हुआ है दैट इज़ 10⁻⁵ केल्विन। वो क्या कहता था? -273.16 केल्विन, जबकि जो टेम्परेचर अचीव हुआ है इट इज़ 10⁻⁵ केल्विन। Coming to the next topic, which is a very very important topic of this chapter, liquefaction of gases. What is liquefaction? Liquefaction is basically the conversion of gas into liquid. ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना को क्या कहते हैं? लिक्विफैक्शन। अब आपको अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी। गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, जो उनके दरमियान अट्रैक्शन है वो बहुत कम, मिनिमल होती है, ना होने के बराबर, सही। लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक तो करीब करीब होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़ीरो हैं, लेकिन अगर हम उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट कर दें, इसका मतलब है गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर हम गैस को हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर देंगे, हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स जितने करीब करीब होंगे उतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान ज़्यादा होंगी। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं टेम्परेचर कम कर दें। जितना टेम्परेचर कम होगा गैस का, उतने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो मूव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हैपहैज़र्ड मूवमेंट शो नहीं करेंगे। जब वो हैपहैज़र्ड मूवमेंट शो नहीं करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, वो करीब करीब रहेंगे। इट मीन्स उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगी। सो फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड वी हैव टू डू टू थिंग्स। वी हैव टू प्रोवाइड हाई प्रेशर एंड वी हैव टू प्रोवाइड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ओके। सो द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर या हाईएस्ट पॉसिबल, दो तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, हमने गैस को क्या करना है, लो टेम्परेचर करना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। gas, it means gas has higher temperature and liquid has lower temperature. So basically the highest temperature जहाँ तक जो आपकी गैस है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी उसको आप कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ एक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो आपके पास गैस गैशियस फॉर्म में रहेगी, लेकिन 100 से अगर कम होगा तो गैस लिक्विड फॉर्म में रहेगी। नाउ दैट 100 टेम्परेचर इज़ बेसिकली द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर द लिक्विड एंड लोएस्ट टेम्परेचर फॉर द गैस, क्योंकि 100 से नीचे अगर आप आएंगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी और 100 से ऊपर आप जाएंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर मैं लिक्विड के टर्म्स में डिफाइन करूँ तो हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड is called critical temperature. That 100 temperature is the highest temperature जहाँ तक वो गैस लिक्विड स्टेट में रहती है, वो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में रहती है। इसका मतलब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर था फॉर द लिक्विड स्टेट, इसीलिए उसे कहते हैं critical temperature. So critical temperature is the highest temperature at which a substance exists as liquid. उस टेम्परेचर पे आपके पास गैस का कितना प्रेशर है, इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, आपके पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ अ टेम्परेचर विच इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट। उससे हाई अगर टेम्परेचर होता गया, उससे थोड़ा सा भी हाई होता गया तो लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। सो फॉर द लिक्विड इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल टेम्परेचर। इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है उससे क्या कहेंगे, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन और अमोनिया की। ऑक्सीजन इज़ अ नॉन पोलर गैस, उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, नॉन पोलर है, ठीक है। पोलर नॉन पोलर का आपको कॉन्सेप्ट तो होगा। ऑक्सीजन अमोनिया पोलर क्या होते हैं, बेसिकली
पोलर ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, फॉर नाउ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जिनके दरमियान थोड़ी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उनके दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स होते हैं, पोलर से ना, ठीक है, पोल्स होते हैं। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, जबकि जो नॉन पोलर होती हैं उनके दरमियान कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स नहीं होते, सो दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन अमंग देम। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लिक्विफैक्शन? हमने गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड करनी है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, क्योंकि गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हैं लेकिन लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। सो वी हैव टू क्रिएट द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन गैस सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर आपके पास एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उस पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी ना। उसके अंदर ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, आप थोड़ी सी और उसको उस पर काम करोगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उसके अंदर बिल्ड हो जाएंगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। लेकिन एक ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स में पहले से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो उस पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट की जा सकें सो दैट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। यहाँ पे भी ऐसा ही है। फॉर केस ऑफ ऑक्सीजन आप यहाँ पे देखो तो इसका है लिक्विफैक्शन टेम्परेचर 154.4 केल्विन और -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना कम टेम्परेचर है हमने अचीव करना है ताकि हमारी गैस क्या हो जाए, लिक्विफाई हो सके। जबकि इन केस ऑफ अमोनिया NH3 टेम्परेचर इज़ 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ अ हाई टेम्परेचर। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरी दोनों गैसेस हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, Which temperature is easier to achieve? 132 or -118? Definitely 132 is easier to achieve. 200 पे मेरी गैस है, 200 से 132 तक आना इज़ ओके, बट 200 से -118 तक जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि अमोनिया एक पोलर गैस है, अमोनिया के अंदर ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं। सो अमोनिया को हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम करते हैं, 200 से 132 तक आते हैं, तो इट गेट्स एनफ attractive forces among its molecule that it can be liquefied. But in case of oxygen, O2, which is a non-polar gas, we have to lower the temperature up till -118 to convert it into the liquid, right? So अगर आपकी गैस नॉन पोलर है तो आपको टेम्परेचर कम, जितना टेम्परेचर मतलब आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ेगा। अगर नॉन पोलर है बहुत ज़्यादा नीचे आना पड़ेगा टेम्परेचर को, लेकिन अगर पोलर है तो आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर नीचे लेके आएंगे तो आपका जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्वेश्चन अगर ये आए कि वाई पोलर गैसेस हैव हायर क्रिटिकल टेम्परेचर देन द नॉन पोलर गैसेस, तो उसकी रीज़न क्या है, हायर है ना, देखो अब इसकी वैल्यू हायर और इसकी वैल्यू लो है, ठीक है। सो हायर इसलिए है बिकॉज इट इज़ अ पोलर गैस and it has already some attractive forces present among its molecules, so it does not require the harsh conditions. But in case of O2, which is a non-polar gas, it does not have any sort of attraction among its molecules, so we have to lower the temperature up till -118 degrees centigrade to create enough attractive forces among its molecule to be converted into liquid. Okay, so the pressure at this temperature, जो भी क्रिटिकल टेम्परेचर है किसी भी गैस का, उस पर जो भी प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। और उन दोनों कंडीशंस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है उसे हम कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर वाली स्टेज पे 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम है, इट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम। एक और एग्जांपल जो आपको दी हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का लिक्विफैक्शन टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। अब आपको पता है ये रूम टेम्परेचर है, तो इसका मतलब हमें रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लिक्विड में, ठीक है। हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो हम एक्सेल कर रहे हैं या जो प्लांट्स रिलीज़ कर रहे हैं। So 31.1 degree centigrade is the room temperature. It must be converted into liquid at this temperature. इसको तो liquefy होना चाहिए, but you remember there are two conditions: low pressure and low temperature and high pressure.
एक्चुअली अगर ये वाला टेम्परेचर अचीव हो भी जाए तो प्रेशर हमारे पास नहीं होता जो प्रेशर लिक्विफाई करने के लिए हमें ज़रूरत है। तो अगर आप प्रेशर नहीं दे रहे हो तो टेम्परेचर बेशक जितना मर्ज़ी आप कम कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई नहीं होगी। सो दो कंडीशंस आपको मीट करनी है, एक आपने टेम्परेचर सेट करना है, एक आपने प्रेशर सेट करना है। सो यहाँ पे टेम्परेचर तो सेट है क्योंकि रूम टेम्परेचर है 31.1, वो तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है हमारे पास। लेकिन क्योंकि प्रेशर सेट नहीं था, प्रेशर अवेलेबल नहीं था, इसलिए आपकी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकी। Okay, the value of the critical temperature of gas depends upon size, shape and intermolecular forces. आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज़ क्या है, उनकी शेप क्या है, वो राउंड हैं, वो स्मूथ सर्फेसेस हैं, वो रफ सर्फेसेस हैं, ठीक है, और उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितनी है, ज़्यादा है, कम है। दीज थिंग्स विल डिसाइड द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस, ठीक है। अब आपको एक टेबल नीचे दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है सब्सटेंसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या हैं और उनके क्रिटिकल प्रेशर्स क्या हैं। यहाँ से आपने 2-3 एग्जांपल्स कर लेनी है क्योंकि अगर वो कहता है कि डिफाइन करें व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, देन यू मस्ट नो द एग्जांपल विद इट। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह विल डू हाउ टू लिक्विफाई द गैस और मेथड ऑफ लिक्विफाइंग द गैस इन नेक्स्ट lecture. Till then, Allah Hafiz class.